सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बुक्स के बारे में जो कि इट्स माय बेस्ट फ्रेंड. राइटली सेड बाय हैरी ट्रूमैन, not all readers are leaders but all leaders are readers. Also, according to Bill Gates, reading is the main way that I learn and test my understanding. जब इलॉन मस्क को पूछा गया how did you build rockets, he said I read books. मार्क जुकरबर्ग when asked him कि बुक्स ने कैसे उनको हेल्प किया है, so his answers were बुक्स ने उनको हेल्प किया to explore new things, to deep dive into the topics that needed deeper attention. So it was the story of all the great people who has achieved something big. Now talking about how books has really helped me shape my life, it really did, and that is how I have come up with 10 books जिसने मुझे बहुत help किया है in my life, in my career and all. So starting from the first, that is Atomic Habits. इस बुक में ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कैसे ये हैबिट्स कंपाउंड होते हैं और कैसे ये शेप करते हैं, एंड दिस ऑल हैबिट्स ग्रेजुअली दे लीड टू सक्सेस, बिकॉज सक्सेस तो ओवरनाइट नहीं होती, राइट? बट हैबिट्स जो हम एवरीडे करते हैं, फॉर एग्जांपल अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इट कुड बी, और हैबिट्स ऑफ राइटिंग, जर्नलिंग, हैबिट्स कुड बी एनी हैबिट्स, वेकिंग अप अर्ली, ये सारी हैबिट्स धीरे धीरे कंपाउंड होके इट firstly change us and we become a better person, and that is how we achieve our goals, because achieving our goal and where we are, it's a journey. Unless हम अपने आप को shape करेंगे, it will not happen. So these books are really bridging the gap between those both, between this both. So yes, this is the first book. Now coming to the second book, which is Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. ये बुक मुझे याद है, मैंने जब 5 years back when I started my reading journey, I read this book and it was mind blowing, because हम लोग ने कभी schools and colleges में इतने important skill, इतने important finance literacy जिसको बोलते हैं, हम लोग ने कभी बात नहीं करी, and I didn't know at all. But that book has opened my eyes to all this कि okay, I mean finance handling, being financial literate is the base, that is what everyone should learn from their childhood. So this book ने Robert Kiyosaki he had talked about कैसे आप अपने assets and liabilities को differentiate कर सकते हैं. According to him, rich ज़्यादा assets खरीदते हैं and poor ज़्यादा liabilities. So it is a different approach by the author, which is put across in a different way. अगर नहीं पढ़ा है तो definitely I would suggest कि please go and read that book, Rich Dad and Poor Dad. Also he has spoken about कैसे आप financial struggle करते हैं अगर आप सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, if you are working for someone else, and he is more interested in building a business which could run even when he is not there, लाइक सिस्टम्स एंड और बिल्ड करते हैं. दैट इज हाउ आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हैं. सो दिस बुक इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिनॉप्सिस भी पढ़ सकते हैं, विच विल गिव यू अ बेसिक डिटेल ऑन हाउ द फाइनेंशियल थिंग्स वर्क. नाउ कमिंग टू द थर्ड बुक, दैट इज द वन थिंग बाय गैरी केलर. आपने कभी डीप वर्क ट्राई किया है? आपने कभी सिर्फ एक चीज ट्राई की है? अगर नहीं की तो डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज दिस मिथ कि ये मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, विच इज ट्रू. अगर हम डीप वर्क करते हैं, कोई भी एक चीज को फोकस से करते हैं, सो उसका रिजल्ट इज मच मोर बेटर देन हम अगर मल्टीटास्किंग करते हैं. सो मिस्टर द ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कैसे एक वन थिंग पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और कैसे दैट वन थिंग वुड लीड टू सक्सेस. ऑल्सो इन वन स्टडी इन द बुक इट वॉज रिटन कि कोई भी अगर अपने गोल्स को जर्नल में लिखता है, वो मोस्ट लाइकली 39.5% मोर रिजल्ट्स अकम्प्लिश कर पाता है देन द अदर वन, बिकॉज ही एग्जैक्टली नोज कि उनको क्या चाहिए एंड द वे ही इज बिल्डिंग टूवर्ड्स इट. सो हैविंग दैट क्लैरिटी ऑफ डूइंग दैट वन थिंग इज helping you become is gonna shape your life, and that one thing will help you give you extraordinary results. So इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कैसे आप एक वर्क को 2 buckets में डिवाइड कर सकते हैं. One is a maker and the other one is a manager. And to get extraordinary results, आप
मॉर्निंग में एज अ मेकर वर्क कर सकते हैं, एंड इन द इवनिंग यू कुड वर्क एज अ मैनेजर, बिकॉज मॉर्निंग इज मोर ऑफ डीप वर्क, एंड दैट इज हाउ आप एक वन थिंग में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. दैट इज गोना हेल्प यू. फोर्थ वन विच इज द इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया. ये बुक इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ, बिकॉज आई नो हम लोग ने कभी बात ही नहीं करी कि हु आर वी डोंट नो, बिकॉज हम लोग बचपन से वी आर जस्ट ट्रेन टू गेट गुड मार्क्स. आई थिंक दैट इज वॉट वी हैव बीन वी ग्रू अप लाइक दैट. सो कभी ये नहीं सोचा कि हु वी आर एज अ पर्सन. आवर एजुकेशन सिस्टम आर मोर ऑफ कैसे आप सब सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, नॉट नोइंग द फैक्ट दैट वन पर्सन कैन नॉट एक्सेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स. उनका एक अपना एक स्किल है. सो दिस बुक इज ऑल अबाउट कमिंग टू डिस्कवर योर सेल्फ. एक बार अगर हमें ये पता चल जाए हु वी आर, एवरीथिंग कुड बी सॉर्टेड. हमें ये पता चल जाता है हमें क्या करना है. देयर वुड बी क्लैरिटी ऑफ विजन, देयर इज क्लैरिटी इन वर्क, एंड दैट इज डेफिनेटली गिविंग अस सक्सेस. सो दिस बुक वॉज ऑल्सो एन आई ओपनर, जहाँ पे हमें लाइफ का पर्पस पता होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं क्या है हमारे लाइफ का पर्पस, कैसे हम इस पर्पस को कैसे हम अपने स्किल्स को एक बार एक सर्कल में एक्यूमुलेट करके अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं. इट इज मोर ऑफ हाउ कैन यू लीव दैट लाइफ विच विल गिव यू द 100% सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन what you know, what are you good at, what your environment wants, and then after taking that steps according to that. This book is all about living a happy and long life. So this is the Ikigai. Now talking about okay, even एक चीज़ बहुत important है. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें क्या चीज़ का आंसर फाइंड करना है. सो इफ दैट इज मोर ऑफ हमें बिजनेस रिलेटेड, सो बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़नी है. अगर हमें मार्केटिंग रिलेटेड समझना है तो मार्केटिंग रिलेटेड बुक्स. तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना पड़ेगा कि हमें बुक्स कौन से जॉनरा में पढ़नी है. ठीक है, दैट बुक वॉज ऑल अबाउट लाइफ. उससे पहले हमने बात की थी फाइनेंसेस के बारे में. नाउ टॉकिंग अबाउट क्रशिंग इट, इवन दिस वॉज अ गुड बुक दैट आई रेड, एंड आई डू फॉलो हिम बिकॉज बहुत अच्छे से इन्होंने बताई है कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस अपने ब्रांडिंग करके अपना एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन यू कुड बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन. सो दिस बुक हैज कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कैसे एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड होते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे दिस डिजिटल एज में आप उसको बेनिफिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट strategies that would work, but being authentic to yourself. Releasing content, he has talked about releasing content, crushing it, don't crush your dreams, hustle and get through it. That is what Gary Vee has talked about. And कैसे आप creator बन सकते हैं, not just a consumer, and you can build businesses just the way he did. So even this book has really helped me. Now coming to the next book, which is 80-20 Principle. This book is by Richard Koch. In this book उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कैसे 80-20 प्रिंसिपल काम कर सकता है, कैसे आपका like this somewhat ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी काम करता है, कैसे हम 20% और ऑफ हमारे वर्क 80% ऑफ द रिजल्ट देता है. द मोर वी फोकस ऑन दैट बेस 20% and the more we get the result. मतलब 80% of the customers would give the 20% of the. इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कैसे 20% of our time और energy could give 80% of the result. कैसे 20% of the customers can give 80% of the profits of the businesses. ये वाले प्रिंसिपल को उन्होंने हर चीज़ से रिलेट किया है. नॉट नेसेसरीली ये हमेशा 20-80 होता है, बट समवॉट इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये बुक भी आप रीड करिए. नाउ द नेक्स्ट बुक विच इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. ये बुक भी बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक था. इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक. नेपोलियन हिल, ही हैज इंटरव्यूड लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल. सो उन्होंने उनके माइंड, उनके पैटर्न को समझा, एंड ही हैज रिटन इन द बुक दैट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द डिजायर. कैसे डिज़ायर को आप शेप करोगे, कैसे आप सोचते हो उसको एक्शन में लाओगे, कैसे यूनिवर्स वर्क्स एंड कैसे यू विल गेट द रिजल्ट. सो इट वाज ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग अ डिज़ायर एंड दैट मैनिफेस्ट इनटू योर रियलिटी. बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, नथिंग हाइपोथेटिकल.
अगर अगर आप कहीं पे भी स्टक हो तो दिस इज द बुक दैट आई हैव रेड लाइक 10 times. I do read it every time whenever I feel I'm stuck. So even this is something that I would recommend to you. Okay, now coming to the next book, which is Still Like an Artist by Austin. ठीक है, ये बुक का पर्सपेक्टिव वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. एज इन वेन वी टॉक अबाउट स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, इट इज ऑल अबाउट कि आप कंटेंट लिखते हैं, हाउ डू यू राइट द कंटेंट, यू रिसर्च. ठीक है, सो रिसर्च, हाउ डज द रिसर्च वर्क, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट, वो प्लेजरिज्म हो जाता है. बट द ऑथर इज सेइंग दैट अगर आप 10 आर्टिकल्स में से रिसर्च करके उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज वॉट is leading to your copy, and that is not copy, that is not something that you are copying, that is you are getting influence. Also इस बुक में उन्होंने बताया कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो you have to share it with people, because unless आप शेयर करोगे लोगों को पता नहीं चलेगा and people cannot discover you also. So you have to be showing it to people about your good work, whatever you are doing. Okay, and also he is saying that it's always the side projects that take off. मतलब कोई आप साइड हसल कर रहे हैं बिकॉज उस चीज में आपने साइड हसल स्टार्ट किया बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर रियली एंजॉयिंग, यू आर डूइंग अलॉन्ग विद योर जॉब, यू आर डूइंग अलॉन्ग विद समथिंग एल्स. सो आपको वो बहुत मजा आ रहा है एंड उस पर आप एनर्जी डाल रहे हो, तो ग्रेजुअली दैट वुड टेक ऑफ एंड देन आफ्टर यू कुड minimize the job or whatever other things that you're working on. So yeah, I'll definitely suggest this book, which is truly helpful, which is beautiful. So coming to the next, which is E-Myth by Gabriel. उस बुक ने उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बताया है कैसे एक बिजनेस बिल्ड होता है बेस्ड ऑन सिस्टम्स, नॉट ऑन पीपल. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पीपल ड्रिवन बिजनेस है तो पीपल माइट लीव, बट अगर वो सिस्टम ड्रिवन है सो whosoever comes will know the system and that is how they can take it ahead. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लीड जनरेशन, आप लीड जनरेट कर रहे हो बिजनेस के लिए, सो देयर हैज टू बी अ प्रोसेस फॉर दैट. कुछ भी लाइक कोई भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में हो रही है, उसके लिए आप सिस्टम्स बिल्ड करिए एंड दैट इज हाउ आप उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर पाओगे. एनी पर्सन हैज़ 3 स्किल्स. वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो टेक्नीशियन होता है एंड वो एक मैनेजर भी होता है. एंटरप्रेन्योर इज समवन हु कैन थिंक अबाउट, हु कैन हैव अ बेटर विजन, हु कैन बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं. मैनेजर इज समवन हु लिव्स इन द पास्ट एंड हु इज डूइंग द मैनेजरियल टास्क, एंड द टेक्नीशियन इज अ वन हु इज इन द प्रेजेंट एंड उनको पता होता है कि वो को एग्जैक्टली करना क्या है. लाइक दे आर द पर्सन हु आर एक्चुअली डूइंग इट. एंड आपको बिजनेस बिल्ड करना होगा बेस्ड ऑन सिस्टम्स. अगेन ऑल्सो ही हैज सेड दैट अगर आपका बिजनेस आप पे डिपेंड कर रहा है तो आप बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक जॉब पे हो. बिजनेस वो होता है जहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं. सो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन इन दिस बुक ब्यूटिफुली. I would definitely suggest you to read this book too. Okay, now coming to the last book, which is 0 to 1 by Peter. So इन्होंने बताया है कैसे आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो एंड businesses has to be built vertically, not horizontally, which means आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं न कि कुछ कॉपी करके आइडियाज, बट समथिंग यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ओरिजिनल. सो लॉट ऑफ बिजनेसेस आर कि चलो किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने उनका रेप्लिका बना दिया, बट दिस इज व्हाट you will reach from 0 to 1 based on जो already existing नहीं है. So this is what he is talking about. He is also talking about monopolies. business के लिए बहुत अच्छा है, society के लिए बहुत अच्छा है. And also he is talking about कैसे आप एक विजनरी, आपको एक विजन होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए. Unless you are a visionary, you cannot build a business. So this 3 points को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कैसे एक स्टार्टअप बिल्ड हो सकता है, कैसे आप अपने फ्यूचर का बिजनेस प्रेडिक्ट, अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं एंड कैसे आप एक बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं. सो या दिस इज व्हाट बुक्स आर एंड दिस इज रियली हेल्प्ड मी एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो अहेड and read some books. The best part is यहाँ पे a lot of stores are there जहाँ पे they give books on rent and then okay, the good part is even if okay, I get it when people are saying that books are थोड़ा सा expensive, we cannot buy too many books. उसके लिए भी एक solution है. यहाँ पे there are lot of stores on the roads जहाँ पे वो book देते हैं, even they take back the book once you read the book and they charge very nominal, which could be like $100 or $150.
सो अगर आपको वो करना है तो इवन वो भी आप कर सकते हैं. दिस कुड बी अ हेल्प टू यू. सो दिस वॉज अ जर्नी ऑफ मी गेटिंग इन टू रीडिंग बुक्स. आई वॉन्ट कि आप भी अपना रीडिंग स्टार्ट कर ले. गेट रेफर टू बुक्स. अगर कहीं प्रॉब्लम है सो यू कैन रेफर टू बुक्स. यू कैड लीव द कॉमेंट एंड विल सी यू राइट देयर. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. टेक केयर. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.